सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। जैन टॉक्स के 150वें टॉक सेशन में मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन विथ अस, नन अदर देन पद्मश्री परम पूज्य आचार्य चंदना श्री जी। मैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आचार्य श्री चंदना जी का जन्म 26 जनवरी 1937 को महाराष्ट्र के अहमदाबाद में स्थित कटारिया जैन परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम शकुंतला था। लोग उन्हें ताईमा के नाम से भी पुकारते हैं। आचार्य श्री चंदना जी ने 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया था। एक असाधारण प्रारंभ किया था। उन्होंने दीक्षा के तुरंत बाद 12 वर्ष की मौन साधना का कठिन संकल्प लिया और इस समय शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। चंदना जी ने 1987 में आचार्य का टाइटल प्राप्त किया, जो कि बहुत गर्व की बात है। जैन साध्वियों में ऐसी पहली साध्वी वे है जिन्होंने आचार्य श्री जी का टाइटल प्राप्त किया। 1972 में साध्वी श्री चंदना जी ने भगवान महावीर की ऐतिहासिक भूमि बिहार राज्य से अपना सेवा कार्य शुरू किया। सन 1974 में जैन धर्म के सिद्धांत पर आधारित एक धार्मिक संगठन विरायतन की स्थापना बिहार में चंदना जी ने की थी और इस संगठन की स्थापना भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर की गई थी। विरायतन was founded with the mission to directly work towards the care of humanity through health, education, and spirituality without distinction. Virayatan stands on the three pillars of Seva, service to humanity, Siksha, education of all, and Sadhana, self-development. Virayatan is derived from the words Veer, which means Tirthankar Mahavir, and Ayatan, which means holy place. In one of the interviews, she was asked that from where did she get the strength to be so active and so busy with her social work. She replied, "The people for whom I work, their love, best wishes, and happiness are my strengths." She also mentioned that I can't see some diseased shedding tears in pain, children living in ignored life. I can't just stop myself helping them. To serve and to help has become a part of my being. Chandana ji has performed 250,000 eye surgeries and treated more than 8 lakhs ophthalmic cases. Immediate education in stopgap for 10,000 children affected in the devastating earthquake of Kutch, Gujarat in 2001. Besides this, Chandana ji has made establishment of many spiritual training centers worldwide, a true source of inspiration to humanity. She has been bestowed with many awards and honors for undying focus on doing good. Here are a few of them. Padma Shri for Social Work 2022. Jaina Presidential Award 2007 for exemplary work Virayatan has done in spreading the word of Tirthankar Mahavir to one and all through compassion, education, and non-violence. Shri Devi Ahilya National Award 2002 for the service to the mankind in the field of health, education, population, pollution protection through Virayatan. Mahavir Foundation Award 1995 for excellence in propagating non-violence, truth, medicine, and social work. She has inspired many people to actively engage in social work for betterment of humanity. She is truly an incredible jewel in the history of the Jain spiritual world and has touched millions of souls through her deeds and kind words across the world. I am very happy that on the occasion of 150th Jain Talks, she is with us and we got a chance to directly interact with her, to listen her, to experience
her divine aura, I sincerely welcome Acharya Chandanashri ji. Jai Jinendra Acharya ji. Now I would like to invite our founder, Mr. Ramesh Shah, who has joined us from Bangalore, to share his views and words and to greet and welcome Acharya Chandanashri ji. Mr. Ramesh Bhai Shah. जय जिनेंद्र। यहाँ जैन फाउंडेशन का सौभाग्य है कि आज के 150th श्रृंखला में पद्मश्री से सम्मानित आचार्य चंद्रश्री जी हमारे साथ मौजूद है। नील भाई ने उनके बारे में काफी कुछ कहा है। यहाँ बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए। आज के दुनिया में आप सब जानते हैं, we are lacking the basic essence of humanity, which are करुणा, दया और प्रेम, जो आज बहुत कम दिखने को मिलता है। आचार्य चंद्रश्री जी is one lady who personifies these qualities through her servitude to others. जैसे नील भाई ने बताया कि वो दूसरों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, मुझे एक ही चीज आ जाती है कि she can be compared or she is truly Mother Teresa of Jainism. We need to take a leaf out of her book and imbibe these qualities to make the world a better place today. मैंने जस्ट कुछ देर पहले उनसे बात की। मुझे यहाँ तक खबर नहीं था कि उनका एक सेंटर पालिका में है जो वहाँ के पुजारियों के लिए और उनके परिवार को लिए वो एक संस्था चला रहे। काफी लोग तो जानते भी नहीं कि उनकी एक संस्था पालिका में चलती। ऐसे ही इमेजिन मेनी आचार्य श्री जी इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। अगर इसका ही पूरा देश में फैल जाए, this will change the face and the fate of our country. I warmly welcome Acharya Chandanashri ji onto the Jain Foundation platform, and I'm humble that she is spending the valuable hour with all of us. Welcome Acharya Chandanashri ji. Thank you, Neil bhai. Thank you so much, Ramesh bhai, for your kind words. Now we will move on towards our today's session, but before that I would like to invite Sadhvi Sanghamitra ji for Mangala Charan and Bhajan. Jai Jinendra to all of you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. I will start with Namaskar Mahamantra. Namo Arahantanam, Namo Sithanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamo Karo Savabhava Panasano Mangalanam Cha Savesim Padhamam Havai Mangalam Padhamam Havai Mangalam Vishwavyapitamohinastitaranir Balopi kalpankuro Daridrani gajavalim harishishu Kasthani vanhe kana Piyushasya lavopi roganivaham Yadvat tathate vivo Murti
सते सते त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। एक भजन प्रभु महावीर की शरण में। महावीर की अमृत वाणी से जीवन में ज्ञान का दीप जला, श्रद्धा की ज्योत जगी मन में, भक्ति का प्रेम प्रकाश बहा। महावीर की अमृत वाणी से जीवन में ज्ञान का दीप जला, श्रद्धा की ज्योत जगी मन में, भक्ति का प्रेम प्रकाश बहा। गौरवमय इस जिन शासन का हम सबको आशीर्वाद मिला, श्रद्धा की ज्योत जगी मन में, भक्ति का प्रेम प्रकाश बहा। जीवन को अब धन्य करें, कुछ ऐसे सत्कर्म करें कि जीवन हो जाए अब सफल। कई जन्मों के पुण्य फले तब ऐसा शुभ धर्म मिले कि जीवन हो जाए अब सफल। जिन धर्म मिला शुभ ज्ञान मिला, मानवता का विधान मिला, अनुकंपा और अहिंसा से संसार को शांति दान मिला। जीवन में पले संदेश यही महावीर की अमृत वाणी का, शुभ भाव रहे जन मंगल का, सेवा समता और करुणा का। बगिया बन के खिल जाए, इस जीवन को महकाए, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जीवन को अब धन्य करें, कुछ ऐसे सत्कर्म करें, ये दिल की बस इतनी है दिल की आरज़ू। सदियां बीती गूंजी वाणी, जिन वाणी ने उपकार किया, लाखों जीवों को प्रेम मिला, हर बंधन से छुटकार मिला। हम सब मिल कर के साथ चले, हर सुख दुख अपने बांट चले, जहां मानवता का मीठापन हर दिल में अमृत घोल चले। हाँ। बगिया अब सबको हम अपनाए, हमसे भी सब सुख पाए, बस इतनी है दिल की आरज़ू। महावीर की अमृत वाणी से जीवन में ज्ञान का दीप जला, श्रद्धा की ज्योत जगी मन में, भक्ति का प्रेम प्रकाश बहा। गौरव में इस जिन शासन का हम सबको आशीर्वाद मिला, श्रद्धा की ज्योत जगी मन में, भक्ति का प्रेम प्रकाश बहा। हाँ, हम सब
हाँ तं तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जीवन को अब धन्य करे, कुछ ऐसे सत्कर्म करे, बस दिल की है इतनी आरज़ू। थैंक यू। थैंक यू सो मच साध्वी शंदुमित्रा जी, इतने मेलोडियस मंगलाचरण और इस भक्ति भजन के लिए। बहुत ही सुंदर इसके शब्द भी थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम आचार्य श्री जी को सुनेंगे। आज तीर्थंकर महावीर के संदेश को जिन्होंने जीवन में उतारा है और जन जन तक पहुंचाया है, ऐसी विदुषी आचार्य चंदना श्री जी को हम सुनेंगे। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज हमें मौका मिला है उनसे रूबरू होने का इस जैन टॉक्स के 150th टॉक सेशन के अंदर। सो आपको अगर उनसे कोई भी प्रश्न भी पूछना है तो हमने लास्ट 15 मिनट्स प्रश्नोत्तरी के लिए भी रखी है। सो आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न आपके टाइप कर सकते हैं और समय के हिसाब से हम आपको अलाउ भी करेंगे, या तो आपकी ओर से मैं आचार्य श्री जी को प्रश्न पूछूंगा। सो आदर से सम्मानित करता हूं मैं आचार्य श्री चंदना जी को। मेरे आत्मप्रिय सम्मानीय श्रोतागण, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आप सभी के बीच में आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक तरह से तीर्थंकर महावीर के विषय में, उनके सिद्धांतों के विषय में आप सभी से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। यद्यपि ये विषय हमारे लिए नई नहीं है, बचपन से ही हम अहिंसा की बात सुनते रहे हैं, हम अपरिग्रह की बात सुनते रहे हैं, अनेकांत की बात सुनते रहे हैं। ये शब्द हमारी जिंदगी के आसपास में बचपन से ही घुले मिले हैं। लेकिन उन शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी उसकी एक प्रक्रिया है, उस जीवन की एक छोटी सी प्रक्रिया है। उन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का एक मार्ग है, एक उपाय है। इस विषय में मैं आप सभी से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी इस थोड़े से समय में। अहिंसा यह साधना का प्रारंभिक रूप है, जिसमें हम इतना ही हमें बताया जाता है कि हिंसा मत करो, गलत काम मत करो, किसी को तकलीफ मत दो। ये एक उसका प्राथमिक चरण है और यह आवश्यक है, जिससे साधना का बचपन, साधना की प्रारंभिक अवस्था वहीं से शुरुआत होती है कि किसी को कष्ट न दो, किसी को किसी भी प्रकार से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे जीवन की किसी भी क्रिया से किसी को भी तकलीफ हो, ऐसा काम मत करो, तुझे तकलीफ मत दो। एक अहिंसा का वो प्रारंभिक रूप है। उसके आगे उसका दूसरा चरण है, वह है अनुकंपा का। अनुकंपा में जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए सुख की बात सोचता है तो उसे पसंद नहीं होता, उसे कष्ट सहन नहीं होता, और एक तरह से उसके साथ उसके जीवन का एक दूसरा एक आसपास का वातावरण भी है कि जिसके साथ वो किसी भी प्रकार से दुख की अनुभूति और साथ साथ सुख की अनुभूति करने की अपनी संवेदनशीलता का विस्तार करे। दूसरे को दुख देने से दुख होता है तो मुझे भी कोई दुख दे तो मुझे भी दुख होता है, तो मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। और मुझे कोई सुख देता है तो मुझे खुशी होती है, तो उसी प्रकार से मैं किसी और को सुखी बनाता हूँ तो वह भी सुखी होगा। ये एक दूसरा अनुकंपा का महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे रचनात्मक उसका स्वरूप है। तो एक हिंसा प्रथम चरण, दूसरा है अनुकंपा, तीसरा चरण महत्वपूर्ण चरण। और मैं कहती हूँ कि ऐसा चरण जिस विषय में तीर्थंकर महावीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जीवन के अंतिम समय में उन्होंने कही है, ऐसा संदेश दिया है कि उन्होंने न त्याग की बात की,
न तप की बात की, न भक्ति की बात की, न साधना की बात की, न लोक में मोक्ष प्राप्त करने की बात की। उन्होंने कहा अगर तुम कुछ कर सको तो बस मैत्री भूयेषु तपये, संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री, संपूर्ण विश्व के साथ में प्रेम, इतना रचनात्मक तुम्हारा जीवन हो जाए कि तुम संसार के साधनों का उपयोग करते हो, तुम्हें भी किसी के लिए उपयोगी बन करके अपना मित्र बनाना है। तो एक तरह से अहिंसा का प्रथम चरण, हिंसा मत करो। दूसरा चरण अनुकंपा का, दूसरों की संवेदनाओं का सम्मान करो। और तीसरा चरण विश्व के साथ में मैत्री। मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसे लगता है उसका जो तृतीय चरण है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार से भेद किए बिना, न जाति का, न धर्म का, न देश का, न प्रांत का, न वर्ग का, किसी भी प्रकार की चीज का वर्गीकरण किए बिना संपूर्ण विश्व के साथ मैत्री का विस्तार कर दो। बस यह उनका एक। और मैं सोचती हूँ आज सारी दुनिया को अगर किसी संदेश की जरूरत है, किसी सिद्धांत की आवश्यकता है, किसी आचार व्यवस्था की आवश्यकता है, तो विश्व मैत्री का संदेश अगर हम लेकर के चले तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अनगिनत दुखों से मनुष्य को बचाया जा सकता है। ये अमीरी और गरीबी, ये द्वेष और घृणा और नफरत और ये वैमनस्य की एक तरह से जो राजनीति सारी दुनिया में चल रही है। और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, जिस देश ने कभी किसी से युद्ध नहीं किया और इस कारण वो संपन्न है, समृद्ध है, सुंदर है, वहां किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं है। तो अगर एक स्विट्जरलैंड जैसा देश हो सकता है तो क्या सारी दुनिया, सारी पृथ्वी ऐसे नहीं हो सकती? और जब हम उस अहिंसा को मानते हैं, दुनिया के सभी लोग, कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जो अहिंसा में विश्वास न करता होगा। सभी लोग उसकी परिभाषा हो सकती है, किसी किसी की भिन्न हो। कोई अहिंसा की अलग ढंग से व्याख्या करता हो, कुछ और करता हो, लेकिन अहिंसा किसी को तकलीफ न देने की बात तो सारी दुनिया के लोग मानते हैं। तो अगर हम इस दुनिया से युद्ध को भी अगर हम समाप्त कर सके दुनिया में किसी भी प्रकार से, तो एक तरह से सारी दुनिया में संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री की बात अगर ये जन समाज पहुंचा सके तो हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी हो सकती है। और ये पृथ्वी पर अनावश्यक जो एक समस्याओं से दुखी है मनुष्य, उसे बचाया जा सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहला एक अहिंसा का, और उस अहिंसा को रोकने के साथ में उन्होंने जीवन की, खास करके गृहस्थ जीवन के लिए, न व्यवसाय के लिए उन्होंने मना किया, न खेती करने के लिए मना किया, न पशुपालन करने के लिए मना किया, लेकिन एक इनकार, एक बहुत बड़ी जीव की, जो एकेंद्रीय जीव की जो हिंसा है, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि एकेंद्रीय जीव की हिंसा उससे बचा नहीं जा सकता। एकेंद्रीय जीव की अहिंसा हमारे भाव में हो सकती है पर व्यवहार में अव्यवहारिक है। एकेंद्रीय की हिंसा से कोई भी नहीं बच सकता। गृहस्थ की बात तो जाने दीजिए, साधु भी एकेंद्रीय जीव की हिंसा के बिना रह नहीं सकता। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, जीवन की तमाम क्रियाएं, वहां किसी न किसी प्रकार से एकेंद्रीय जीव की हिंसा होती है। लेकिन उस हिंसा के संबंध में भी उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही, कि वो है अनर्थ दंड। अनावश्यक हिंसा से बचो। जीवन के किसी भी प्रवृत्ति से, चाहे वो मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे व्यवहार से हो, कहीं पर भी अनावश्यक जो तुम्हारी प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति से जो हिंसा होती है, उससे तुम अपने आप को बचा लो। तो अहिंसा और उसके साथ साथ में अनर्थ दंड। अहिंसा पूर्ण भाव में हो सकती है पर व्यवहार में नहीं हो सकती, और व्यवहार में उसको जो होते हैं उसको अनर्थ दंड से रोकने की कोशिश की।
तो एक तरह से इस अहिंसा की व्यापकता को अगर हम ठीक तरह से समझ लें तो हमारी बहुत सारे जीवन के अनावश्यक प्रश्न, चाहे कदम कदम पर हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सिद्धांत के साथ में व्यवहार की जो हमारी अकुशलता आ गई है और जो सक्रियता आ गई है वो कम हो गई है। और मैं इतिहास की अनगिनत घटनाओं का मेरे सामने उसका चित्र है। अनगिनत लोगों ने जब जब कभी आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने मानव जाति के अहित को, मानव जाति की तकलीफों को, मानव प्राकृतिक उपद्रवों से कहीं पर भी किसी भी प्रकार से तकलीफ हुई है तो जैन आचार्यों ने, जैन श्रावकों ने उस कार्य में आकर के आगे आकर के मदद करके लोगों को बचाने की कोशिश की है। चाहे वो प्राकृतिक विपदाएं हो, चाहे वो राजनीतिक विपदाएं हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ हो, उस तकलीफ में उन्होंने सक्रिय होकर के, सहयोग दे करके, दान दे करके लोगों की भावनाओं को संभाला है, विचार किया है। तो उस अहिंसा को निष्क्रिय नहीं होने दिया, निष्क्रिय नहीं होने दिया। तो अहिंसा का सक्रिय रूप वो मैत्री में है। मैत्री ऐसे केवल भावों से नहीं हो सकती। मैत्री तभी संभव है कि जब आप उसके दुख में सहभागी बन करके उसके दुख को दूर करेंगे तो आप मित्र बना सकेंगे। ऐसे ही बैठे बैठे हाँ हमारे सब मित्र हैं, सब मित्र हैं, ऐसे नहीं होगा। तो इस मित्रता की व्यापक परिभाषा जानने की आवश्यकता है आज की परिस्थिति में। और मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि इस अहिंसा को समझे लोग, और उसी का परिणाम हुआ कि आज विराटन के माध्यम से कई तीर्थ क्षेत्रों में सेवा का काम और एजुकेशन का काम, संस्कार परिवर्तन का काम हुआ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अहिंसा के बाद एक दूसरी चीज है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ है कि अहिंसा अपरिग्रह, तो परिग्रह के बिना, जैसे हिंसा के बिना जीवन नहीं है, लेकिन अनर्थ दंड से उसको संयमित किया है, इसी प्रकार से अपरिग्रह हम कितनी भी कोशिश करें संपूर्ण अपरिग्रही बन नहीं सकते हैं। कितनी भी कपड़ा है, नहीं वस्त्र तो भोजन है, नहीं भोजन तो शास्त्र है, भगवान है, मंदिर है, पूजाएं हैं, ये सब कुछ उस परिग्रह के साथ में जुड़े हुए हैं। हम संपूर्ण अपरिग्रही बन नहीं सकते। लेकिन महावीर ने कहा अपरिग्रही नहीं बन सकते हो, लेकिन संविभाग तो कर सकते हो। तुम्हें जो हम अपने श्रम से तुमने जो प्राप्त किया है उसका तुम वर्गीकरण तो कर सकते हो, उसका संविभाग तो कर सकते हो। तुम सारी दुनिया का लेते हो, तुमने ये मकान नहीं बनाया है, तुमने ये वस्त्र नहीं बनाया है, तुमने भोजन नहीं बनाया है, तुमने दुनिया की बहुत सारी चीजें तुमने नहीं बनाई है, लेकिन तुम उसका उपयोग करते हो। तो तुम्हारे पास अगर वे साधन है, तुम साधनों का संविभाग करना सीखो। अगर उपयोग करते हो तो तुम दूसरों के लिए भी उपयोगी कैसे बन सकते हो, इसके लिए तुम अगर प्रयत्न कर सकोगे तो अपरिग्रह, एक अपने आप अपरिग्रह की साधना व्रतों में आएगी। नहीं तो केवल शब्दों से वो समझ में नहीं आएगा। तो जैन समाज इस दृष्टि से बराबर उसने जहाँ संपत्ति अर्जित की है तो समय पर उसका विभाजन भी किया है, वर्गीकरण भी किया है, और उसी के कारण जैन धर्म की प्रभावना हो सकी है। विरायतन भी जो कर सका है इसी के कारण कर सका कि लोगों के सहयोग के कारण सेवा को विस्तार मिला, लोगों के सहयोग के कारण एजुकेशन को विस्तार मिला, और उससे लोगों के संस्कारों में परिवर्तन आया है। और इतना बड़ा परिवर्तन कि जो मैंने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, मुझे मदर टेरेसा से बहुत सम्मान है, और उन्होंने जो काम किया है मैंने देखा है। मैं खुद मदर टेरेसा से मिली हूँ, उनको मैं सम्मानित करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है कि मैंने किसी का भी, लाखों लोग मेरे संपर्क में आए हैं, लाखों लोगों की चिकित्सा, हजारों लोगों की एजुकेशन, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति का,
एक भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा है, एक भी परिवर्तन नहीं करा है, बस ये संस्कार परिवर्तन। वे शुद्ध शाकाहारी बने, वे व्यसन मुक्त बने, वे किसी भी प्रकार से किसी को तकलीफ न दे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, जातीय संघर्ष न हो, धार्मिक उन्माद न हो, इसके लिए मैंने प्रयत्न किया है। तो एक तरह से मैं उस महावीर की उस अपरिग्रह की बात आपसे करना चाहती हूँ कि अपरिग्रह करते है विस्तार दो, लेकिन विस्तार के साथ में द्वेष और घृणा नहीं, लेकिन प्रेम का विस्तार हो। और विराटन ने इसी अर्थ में अब तक काम किया है। मैं तीसरी बात संक्षेप में करना चाहूंगी कि बात तो हमारी अनेकांत की है कि हम बहुत सारे दुनिया की तमाम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, सच्चाई को मानते हैं, सच्चाई का सम्मान करते हैं, सभी मार्ग सभी लोग, लेकिन जब चलना होगा तो हमें एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। सिद्धांत में अनेकांत हो सकता है, पर व्यवहार में एकांत ही होगा। हमें 10 मार्ग चलने के लिए पता है, लेकिन जब हम चलेंगे तो एक ही रास्ता हमें अपनाना होगा। हम 2 रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो चाहे हम जो भी रास्ता अपनाएं, सेवा का अपनाएं, एजुकेशन का अपनाएं, साधना का अपनाएं, साधना के अनेक रूप हैं उसको अपनाएं, हम कोई भी एक मार्ग लेकर के चलते हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ये जो धार्मिक असहिष्णुता है वो अपने आप कम होगी। तो अनेकांत पर कोई भी कह सकता है कि आप तो सफेद कपड़े पहनते हैं, आप तो जैन साथी हैं, तो दूसरों का कुछ तो पहनेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो एक, तो क्योंकि जीवन इतना, इस अनंत विश्व में हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, और इस छोटे से जीवन में हमारा लिए रास्ता भी छोटा ही होगा। लेकिन हम दूसरों का अनादर करना अगर हम छोड़ दें तो मेरी दृष्टि से वो जो असहिष्णुता के द्वारा जो द्वेष, दुश्मनी, घृणा और नफरत की ज्वालाएं दुनिया में धधक रही है वो मिट सकती हैं। तो मेरी दृष्टि से महावीर के ये 3 सिद्धांत, एक अहिंसा, अनर्थ दंड मुक्त अहिंसा, इसी प्रकार से अपरिग्रह, जहाँ समिभाग के साथ हमारे पास में चाहे बौद्धिक क्षमता हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, जो हमें उपलब्ध साधन है उन साधनों का हम समिभाग करना सीखे और उस पर अपना एकाधिकार ना करें, तो बहुत सारे अनेक अनेक मित्रों को हम अपने साथ में जोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से अनेकांत की मान्यता होते हुए भी हमें अपने जीवन का एक मार्ग तय तो करना ही होगा। तो एक तरह से इन 3 सिद्धांतों के 3 तत्व जो आवश्यक हैं उसको अगर हम ध्यान में रख सकेंगे तो विश्व में हम शांति ला सकेंगे। और मैंने सोचा कि बस हम सारी दुनिया का, एक व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता है, उसके समय की सीमा है, साधनों की सीमाएं हैं, और उस सीमा के भीतर में सारी दुनिया के साथ वो विचार से तो जुड़ सकता है पर आचार से नहीं जुड़ सकता। तो मैंने एक तरह से कहा, जहाँ जिनालय, महाविद्यालय, महाचिकित्सालय, एक सूत्र दिया है कि जहां जहां तीर्थंकरों ने उस परम ज्ञान को बांटा है जो हजारों वर्षों से लाखों लोगों की जिंदगी को मार्गदर्शन दे रहा है, 2500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन महावीर को हम अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने आचार से, अपने सिद्धांत से अलग नहीं कर सकते हैं। अपने अस्तित्व के साथ में महावीर का संदेश, महावीर की वाणी अपने जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। तो उस दिव्यता को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आसपास की जनता के साथ में जो तीर्थ क्षेत्र है उनको अगर हम सुरक्षित रखें, उन्हें हम शाकाहारी बनाएं, उन्हें हम व्यसन मुक्त करें, उन्हें हम योग्य शिक्षण दें, उन्हें हम उन्हें स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान रखें, तो एक तरह से वहाँ की जनता आपके विचारों के साथ आकर आपके तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता और उसके साथ वो तीर्थंकरों के दिव्य संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में वे सही देवदूत साबित हो सकते हैं। मेरा यह अनुभव है। मैंने कई ऐसे क्षेत्र की, मैं नाम ये भी ना कहूंगी, ऐसे अपराधों से भरे हुए, डर जाते थे रात में तो नहीं, दिन में भी लोग जहाँ जाने से डरते थे, उस जगह भी लोगों का वातावरण इतना पूर्ण अहिंसक हो चुका है कि जिसके कारण इतने भी क्षेत्र सुधर सकते हैं। तो बिना धर्म परिवर्तन किए भी महावीर की उस अहिंसा को, उस अमृत को अगर हम सारी दुनिया में
वर्षा की तरह, उस वर्षा की बूंदों की तरह बांट सके, तो इतना भी काम अगर हम कर सके तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो अमृत पिया है वो केवल हम अपने तक सीमित न रख करके उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार कर सके, तो हम दुनिया के लिए बहुत बड़ी अपने जीवन की देन हो सकती है। और उस देन से हमारे लिए जीवन में जो एक महत्वपूर्ण दान प्राप्त हो सकता है उस प्रभु की कृपा का, उस दान से हम अपने आप को गौरवान्वित जीवन हम सार्थक कर सकेंगे। मुझे ऐसे लगता है मैंने अहिंसा की बात, अपरिग्रह की बात और अनेकांत की बात की है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और इसी के आसपास में हम एक अपनी अहिंसा को, अपरिग्रह को और अनेकांत को रचनात्मक रूप दे, केवल सिद्धांत विचारों में, शब्दों में ना हो, लेकिन आचार में हो। और इसी दृष्टि से पालिताना में भी मैंने इसी के लिए प्रयत्न किया है कि यहाँ पर भी सेवा के माध्यम से लोगों के संस्कारों को बदलने की कोशिश की है, शिक्षा के माध्यम से भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आए इसके लिए कोशिश की है। और आप यहाँ जब पालिताना में आएंगे तो बहुत थोड़ा सा समय, 3 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन यहाँ पर इस छोटे से समय में एक जबरदस्त परिवर्तन आप देख सकेंगे। और यहाँ पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए और पुजारियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण का केंद्र यहाँ पे अपने कायम करने जा रहे हैं, जो समाज के लिए साधु साध्वी की सीमाएं हैं, लेकिन ये पुजारी गांव-गांव में है। उन लोगों को अगर वो संस्कार, शिक्षण, मार्गदर्शन अगर दिया जाएगा तो वहाँ की जनता के लिए बहुत बड़े रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। तो अपना ये प्रयत्न है, आप सबकी जानकारी के लिए है। बस आप कभी, और बस यहाँ पे संगमित्रा जी कह रहे हैं, यहाँ पे जो सर्वसाधारण बच्चे हैं जो कभी सोच नहीं सकते हैं कि उन्हें कभी स्कूल में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, वो डोली वाले बच्चे, उनके बच्चे हर जाति के, जहाँ हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का भेद के किए बिना सब जाति के लोग, सब तरह के लोग यहाँ पे लाभ प्राप्त करते हैं। और यहाँ के हॉस्पिटल और यहाँ की स्कूल और इसका मैनेजमेंट, इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जो भी व्यक्ति देखता है अत्यंत प्रसन्न होता है और ऐसे सोचता है कि हर तीर्थ क्षेत्र में अगर ये व्यवस्था हो जाए तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों के विषय में लोगों के, आसपास के लोगों का एक अलग तरह से दृष्टिकोण जैन समाज की तरफ में हो सकता है। और जैन समाज ने हजारों वर्षों से समाज के लिए किया है और अभी भी यह धारा अखंड है। लेकिन भगवान महावीर के नाम से हो, उनकी कृपा के माध्यम से हो, उनकी करुणा के माध्यम से हो, उनके नाम से हो, तो एक जैन समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात होगी। विरायतन तीर्थंकर महावीर के नाम से करता है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जो भी कुछ है बस तीर्थंकर महावीर की करुणा और उनकी अहिंसा और उनका ही अनेकांत और उनका ही अपरिग्रह, इसी बात पर पिछले 50 साल से विरायतन काम कर रहा है। और जो हो सका है वह आप सभी लोगों के अप्रतिम प्रेम और एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा, उसी का ये परिणाम है कि आज इतना निश्चिंतता से ये काम कर रहा है, देश में कर रहा है, विदेशों में भी कर रहा है, अलग जगह, हर जगह पे कहीं किसी भी प्रकार से कहीं पर भी न संप्रदाय का न व्यक्ति का कोई नाम लिए बिना केवल तीर्थंकर महावीर के नाम से ही अगर हम काम करते चलेंगे तो हमारी सामाजिक जो एक छोटी मोटी जो सीमाएं हैं, संकीर्णताएं हैं, उसके कारण हमारे विस्तार में जो रुकावट आती है वो बंद हो सकेगी। मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो समय दिया है उसमें मैंने अपनी बात को पूरा करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो जरूर आप उन प्रश्नों को पूछें, मैं उन प्रश्नों के समाधान करने की कोशिश करूंगी। जी आचार्य श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सेशन के अंदर आपने तीनों सिद्धांतों की जो डेफिनेशन समझाई है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज हमें सबको मिला। आपने अहिंसा के संदर्भ में कहा कि कोई भी जीव हिंसा से बच नहीं सकता, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से बचा नहीं जा सकता, पर जो अनर्थ दंड बताया है यानी कि अनावश्यक हिंसा से बचना है,
तो ये दोनों बातें बता के आपने अहिंसा को किस तरह समझना है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। साथ ही साथ अपरिग्रह की बात करते हुए आपने कहा कि हम कितनी भी कोशिश करें संपूर्ण अपरिग्रह नहीं बन सकते, बट हम संविभाग तो कर सकते हैं, यानी कि हम जो उपयोग करते हैं वो दूसरों के साथ कैसे बांट सकें। ये भी एक प्रकार का परिग्रह है, हमारी ममता और मूर्छा को उतारने का एक मार्ग है। और अनेकांतवाद की बात करते हुए आपने कहा कि सिद्धांत में अनेकांतवाद हो सकता है पर व्यवहार में तो एकांत ही होता है, यानी कि हम एक रास्ता पकड़ते उसके ऊपर चलते हैं, पर उसके ऊपर चलते चलते भी हम दूसरों का सम्मान करें, यही रियल सेंस में अनेकांतवाद है। तो आपने ये तीनों जो सिद्धांत है, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, इसका एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आज सभी दर्शकों को दिया है। सो उस बदल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी ये सेशन को मैं ओपन रखना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, और मौका हम आप सबको देना चाहते हैं, आप डायरेक्टली आचार्य श्री जी से पूछ भी सकते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम 3 से 4 प्रश्न ही लेंगे आज के सेशन में, और आप कोशिश करना कि आपके पास वैलिड प्रश्न हो तो ही आप हैंड रेज करना। मृदुला जी शाह, आपको कोई प्रश्न है आप अनम्यूट कर सकते हैं। मृदुला जी शाह। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ चंदा जी को। और उन्होंने जो बात की है, जिस तरह से सिर्फ महावीर के नाम पर सबको जो भगवान ने हमें दिया है वो हर जगह पर पहुंचे। एक मिनट, तो उसमें हम सब लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और ये जो आपके विचारों की धारा है बहुत लोगों तक पहुंचे, उसमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और जी थोड़े दिन मेरे साथ रह करके काम करना देख लीजिए। बहुत जी आराम से बहुत सारे लोगों से अपने जुड़ सकते हैं। मेरे जी रास्ते से चलते हुए अगर मैंने किसी को बीड़ी पीते हुए देखा है, मैं रुक गई हूँ और उसको मैंने जाकर के पूछा और उससे मैंने बात की है। मैं क्या कहूँ कि मैं नेपाल में थी, एक 15-16 साल का लड़का वो सिगरेट फूंक रहा था रास्ते में बैठ करके। मुझे काफी देर हो रही थी, सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन मैं रुक गई और उस लड़की से मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी एक माँ अगर इस प्रकार से तुमको सिगरेट पीते हुए देख ले तो माँ क्या कहेगी? माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी कि तुम अच्छा कर रहे हो कि नहीं। तो सोचो कि आज भगवान ने तुम्हें एक माँ भेजी है जो तुम्हें कह रही है कि सिगरेट मत पियो। उसे सिगरेट का पैक और वो ऐसे ही दूर नीचे पहाड़ के नीचे उसमें फेंक दिया और कहा, उठा, चरण छुए और उसने कहा कि मैं अभी जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं चलती हूँ, गाड़ी में जाती हूँ, खास करके मैं कहीं आसपास में बैठती हूँ, लोगों की झोपड़ियों में जाती हूँ और उन लोगों से बैठती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको कहती हूँ कि देखो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, परिश्रम करके पैसा कमाते हो और शराब पी करके तुम अपने खैनी खा करके तुम अपने खून को सुखाते हो। कोई तुम गधा भी नहीं, गधा भी वो तम्बाकू नहीं खाता और तुम खाते हो, तो तुम गधे से भी गए गुजरे हो। और मैंने इस तरह से लोगों को उनकी भाषा में वो जिस प्रकार से समझ सकते हैं उस तरह से जाकर के उन लोगों से मैं मिली हूँ, उन लोगों के बीच में बैठी हूँ। उन लोगों से मैंने कहा कि क्या मैं हॉस्पिटल में आते हो, तुम लोग यहाँ पे औषधि लेते हो, उपचार कराते हो, भोजन करते हो, सारी सुविधाएं तुम लेके जाते हो, और मैं घर पे आऊं और मैं तुम्हारे यहाँ कहूँ कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, तो तुम नहीं खिलाओगे। तो लोग कहते कि नहीं, ऐसे कैसे कहते हैं, आप आएंगे तो हम जरूर हम खाना खिलाएंगे, लेकिन मुझे पूछो कि मैं क्या खाऊंगी, किसके घर पे खाऊंगी। मैंने कहा मुझे जाति से कोई नफरत नहीं, किसी भी जाति का, हरिजन हो, आदिवासी हो, किसी भी जाति का हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो घर शुद्ध शाकाहारी होना
होना चाहिए। अगर वो शाकाहारी घर है तो मुझे उसके घर पे बैठ करके उसके साथ भोजन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कई परिवारों ने मांसाहार छोड़ा है। मैं कहती हूँ अगर हमारे भीतर में आत्मीयता है, उनके प्रति ममता है, उनको अगर हम ज्ञान देंगे तुम ये खाओगे तुम मर करके नरक में जाओगे, तो ऐसा भय पैदा करके आप उनसे व्यसन मुक्त नहीं करा सकोगे। जैसे आपका ही अपना कोई व्यक्ति है, अपना है, उस व्यक्ति के साथ में उस प्रकार का व्यवहार करके अब देखो आज यहाँ पे जैसे नील जी ने कहा कि रायतन के लोगों के संस्कार, अब वहां नहीं, आप कच्छ में जाइए, आप लिछवाड़ जाइए, आप पलटन आइए, आप कहीं पर भी आकर के 60-60, 70-70, 80-80 लोग संस्था में काम करते हैं। किसी को भी जोर से बोलता हुआ आप नहीं सुनेंगे, किसी का भी अपमान करते हुए आप नहीं सुनेंगे, किसी को भी कहीं मतलब जैसे कि मतभेद हो जाए और कोई जोर से बोल दे, ऐसा कहीं आप नहीं दिखेंगे। कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो एक मैनेजर भी होगा और उसको भी नहीं पता तो वो कहेगा कि मेरी बैग, तो वो मैनेजर कहेगा कोई बात नहीं मुझे दे दो। वो किसी दूसरे को नहीं बुलाएगा कि तुम आओ इसका सामान उठा के लेके जाओ। तो वो एक तरह से एक आत्मीयता, प्रेम अपने आसपास के लोगों के बीच में अगर हम बांटते तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। चाहे वो टमटम वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे काम करने वाले लोग हो, ये उनके परिवारों तक उनके जीवन बने हैं, संभले हैं, सुधरे हैं। तो वो उपदेश और प्रवचन से नहीं लेकिन जीवन की इन छोटी छोटी क्रियाओं से हम लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप आइए कुछ दिन मेरे साथ और आप देखिए कि कैसे हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, कितना उपयोगी बन सकते हैं। धन्यवाद। आप प्रेम की सरिता हो, प्रेम की मूर्त हो। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। स्वाति जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मथे वंदामी ताइमा, मैं स्वाति आगरा से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। जब तक वो मेरे पास रहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं उन्हें सही डायरेक्शन दिखा रही हूँ, सब संस्कार घर में मिल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चिंता खाती है कि जब वो बड़े होंगे और कॉलेज जाएंगे, जो मेरी बड़ी बेटी है वो शायद 2 साल बाद कॉलेज चली जाएगी और सिर्फ छुट्टियों में मुझसे मिलने आएगी। तो मुझे कई बार ये डर खाता है कि कैसे ये संस्कार वो आगे भी कैरी करे। क्या और ऐसे थॉट्स बच्चों के दिमाग में हमें देने चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि वो आगे की जिंदगी में भी इन राइट पाथ, राइट डिसीजंस लें और हर बार मैं पास में नहीं रहूंगी उनके लिए चूज करने के लिए। तो जी ताइमा। हाँ, बस मैं कहूंगी कि तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम छोटे थे जी, उन्हें पता था कि तुम इतने अच्छे संस्कारों के साथ में बच्चों को संस्कार दोगी। उनके भी मन में तुम्हारे प्रति संदेह था, संदेह रहा होगा कि पता नहीं बच्चे बड़े होकर के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन तुमने इतना अच्छी तरह से परिवार को संभाल लिया है। आदर्श जीवन है तुम्हारा स्वाति, और तुमने परिवार को भी इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सभी को तुमने अपना बना लिया है। मैं जानती हूँ, तुमको जानती हूँ, तुम्हारे परिवार को मैंने देखा है। तो एक तरह से उस अमृत से जैसे तुमने बांट लिया है, तो तुम बच्चों पर विश्वास रखो, उन्हें प्रेम दो, बस और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बाहर की दुनिया से, दुनिया के प्रभाव से आप उसको वंचित करके उनके विकास को आप रोक नहीं सकोगे। बाहर भेजना ही होगा, बाहर भेजे बिना विकास नहीं होगा, बाहर भेजना ही होगा। लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारी सद्भाव और तुम्हारा सद्व्यवहार उन बच्चों को इतना आकृष्ट करता रहेगा कि तुम्हारे संस्कारों से बाहर जा नहीं सकेंगे। मैं भी अपने पास में देखती हूँ कि मेरे निकट में ऐसे ही जो लोग आए हैं मेरे पास में हमेशा नहीं रहते, वो वर्षों वर्षों तक दूर रहते हैं। लेकिन आज वर्षों की बात में भी मैं भी 86 में हूँ, मैंने अपने छोटे छोटे लोगों को छोड़ा है। तो उसी तरह से आज उनके जीवन में उन्हीं संस्कारों के साथ जो आज भी वो उसी प्रकाश में जीते हैं। तो चिंता मत करो, परेशान मत हो, वो बच्चे समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। तुम उनकी चिंता मत, तुम केवल अपना ध्यान रखो कि आज उनके सामने ऐसा कोई मिसबिहेव न हो कि जो उनको याद रहे कि मेरा मम्मी भी ऐसा करती थी, ऐसा न रहे। ध्यान रख लेना स्वाति। ताइमा, मथे वंदामी।
थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। और किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, हमारे पास समय बहुत कम है, हम 1-2 प्रश्न लेंगे और, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। तब तक के लिए चैट बॉक्स में आए हुए प्रश्न में से मैं प्रश्न लेना चाहूंगा। किसी को डायरेक्टली पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ताइमा, एक प्रश्न आया है कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसकी वजह क्या रही? बस मैं अपने गुरुजनों का अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्मरण करती हूँ कि उन्हीं की कृपा, उनका साहस, उनका मार्गदर्शन और उनका संरक्षण, इस संरक्षण के कारण ही मैं कुछ कर पाई हूँ। अगर मैं पढ़ सकी हूँ तो अपने गुरुजनों की कृपा से, अगर मैं काम कर सकी हूँ तो अपने गुरुजनों के सहयोग से, उनके संरक्षण से, उनके संवर्धन से। मुझे सोचने में, काम करने में उन्होंने कभी मुझे रुकावट नहीं दी। मेरे गुरु श्री सुमति कुंवर जी, रंभा जी महाराज, मेरी माँ प्रेम बाई कटारिया, इन लोगों ने मुझे जिस तरह से, इन 3 माताओं ने जिस तरह से संभाला, राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव अमरमुनि जी का मार्गदर्शन मुझे मिला, तो इन सब लोगों के कहना चाहिए कि उनके विचारों की दिव्यता, उनके विचारों की स्पष्टता और उनका एकदम सुदृढ़ मार्गदर्शन और सहयोग, इन सब के कारण मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाई हूँ। बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। जी आचार्य श्री जी, आपने बहुत ही मीन्स आपकी मन की जो बात कही है, डेफिनेटली मीन्स आपने इतना सारा ग्रेटिट्यूड आपके जितने भी गुरुजन और जितने भी उपकारी उसके प्रति बताया है। कहीं लगता है कि हम भी अगर उनको क्रेडिट दे और ग्रेटिट्यूड की भावना रखे तो हम भी शायद इस मुकाम में आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रश्न आया है प्रवीणा मुनोत जी का। प्रवीणा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम माता श्री। आपने जो बताया उस रास्ते पे चलने के लिए हमको समता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हम उसको कैसे ग्रहण करें? देखिए प्रवीणा जी, मेरी दृष्टि से अगर समता लानी है तो बस सबसे प्रेम करना सीखो। किसी को भी एक्साइट होकर के आंसर मत करो, एक्साइट होकर के बोलना बंद कर दो। कभी भी अपना जो काम, उस काम को भी एक तरह से सम्मान दो। हमें काम करना पड़ता है, हाँ, हमारी मजबूरी है, परिवार को संभालना पड़ता है, हमारी हम पर एक तरह से भार है। मैं सोचती हूँ अगर हमने अपने से प्रेम करना सीखा, अपने को सम्मानित करना सीखा, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाना सीखा और आसपास के लोगों में भी वह व्यवहार अगर बांटा, तो फिर काम करना आसान होगा, फिर कठिन नहीं होगा। ये कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि हमारे भीतर में कुछ और है और बाहर में कुछ और चाहते हैं, बाहर में कुछ अलग तरह से जीना चाहते हैं। हम भीतर में जो है, तो ये उस अच्छाई की जो उसकी जड़ें हैं वो भीतर तक पहुंचनी चाहिए। कभी भी एक्साइट होकर के किसी को भी आंसर मत करो। इतना ही छोटा सा तय कर लो, एक मैं सद्गुणों की प्राप्ति के पहले हमारे भीतर में जो अनावश्यक कचरा है, अनावश्यक भार है, अनावश्यक जो दुर्गुण है, उनको ही अगर हम धीरे धीरे कम कर दे तो सद्गुणों की सुगंध, सद्गुणों के फूल अपने आप खिलेंगे और उसका प्रकाश अपने को भी महसूस होगा, उसकी सुगंध, और आसपास के लोगों में भी उस सुगंध को हम बांट सकेंगे। प्रणाम गुरु जी। जी आचार्य श्री जी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स के अंदर नीपा जी का, कि हमेशा प्रसन्न और पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रसन्न रहने के लिए बस सबकी अच्छाइयों को देखो, गुणगाही भवाइया। तीर्थंकर महावीर ने बहुत बड़ी बात कह दी। जीवन के अंतिम समय का ये संदेश है, अंतिम समय का संदेश है। उन्होंने कहा समा ही उपायगा, तुम शांति के उत्पादक हो, तुम शांति के उत्पादक हो, तुम दुख के उत्पादक नहीं हो, तुम शांति को पैदा करने वाली मशीन हो। शांति मतलब कितनी बड़ी बात है। समा ही उपायगा, उत्पादक हो किसके? समाधि के, शांति के, आनंद के, सुख के उत्पादक हो। और इसके लिए अगर तुम्हें उत्पादक बनना है, गुणगाही भवाइया, उनके शब्द हैं कि तुम गुणगाही को, दुनिया की अच्छाइयों को देखो, दुनिया के अच्छे गुण देखो,
वो 10 उस बातें उसकी गलत है, लेकिन कोई भी बात अगर अच्छी है तो उसकी तरफ में देखो और उसको सम्मान की निगाह से उसको एक तरह से स्वीकार करने की कोशिश करो। तो गुणग्राही बनो, गुणग्राही बनोगे और फिर तुम समाधि के पैदा करने वाले हो, तो भीतर में अपने आप आनंद ही पैदा होगा। तुम विषाद पैदा करने वाली वो घास काटने वाली मशीन नहीं हो, लेकिन तुम समाधि को पैदा करने वाले तुम एक ऐसे उत्पादक हो। जैसे जमीन है, वो जमीन घास पैदा करती है और जो मशीन है वो घास काटती है, तो तुम घास काटने वाले नहीं हो, तुम उस खेती को पैदा करने वाली जमीन हो। महावीर की ये शब्द है, तुम सुख के उत्पादक हो, दुख के उत्पादक नहीं हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, मुझे तो इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि मैं जब भी कभी अपने आप में विषाद देखती हूँ, तो ये विषाद वो घास काटने वाली मशीन नहीं बनना है, अपने जीवन को दुखी नहीं बनाना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को विषाद से दुखी बनाता है, वो दुनिया को दुखी बनाने में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो दुनिया को भी उसी प्रकार से दुखी बना देगा। लेकिन दूसरों को अगर सुखी बनाना है तो पहले तुम सुखी बनना सीखो, और उसके लिए दूसरों के गुणों को देखो। उसके लिए उन्होंने यही बताया कि दूसरों के दुर्गुणों को देखना बंद करो, दूसरों की बुराइयों को देखना बंद करो, बुराइयों की चर्चा करना बंद करो। जो भी अच्छा है उसी के विषय में बात करो, उसी के विषय में सोचो, अच्छा काम करने के लिए सोचो, अच्छा करो, बस उसी से तुम एकदम प्रसन्नता अनुभव करोगे, जीवन आनंदपूर्ण होगा, दुख नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत ही सुंदर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है। एक और प्रश्न है, आपकी अनुमति हो तो मैं 1-2 प्रश्न और ले लूं? नहीं, अगर आपके पास समय है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच आचार्य श्री जी। एक प्रश्न ये आया है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब चीजें मेरे अनुकूल नहीं होती तो मैं बार बार डिप्रेशन में चले जाता हूँ, मूड ऑफ हो जाता है, तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? देखिए कि एक थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वातावरण बदल दो, किसी अच्छे पॉजिटिव लोगों के बीच में जाकर के थोड़ा सा समय गुजारो, थोड़ा उन लोगों के अनुभवों को सुनो, उस तरह से जीने की कोशिश करो। जो एक ही तरह का वातावरण होता है, एक ही तरह की परिस्थितियां होती हैं, कितनी भी अच्छी से अच्छी परिस्थितियां हो, व्यक्ति ऊब जाता है, थक जाता है। तो एक तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो विषाद से जो एक दुष्परिणाम आते हैं, उस दुष्परिणामों से जो एक मनुष्य एक तरह से उसे कहना चाहिए कि डिप्रेशन में आ जाता है, तो उस डिप्रेशन में आने के पहले ही ऐसे किसी अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छे वातावरण में रहो, और थोड़ा सा जीवन का समय का समीभाग, वस्तु का समीभाग नहीं, समय का समीभाग, जीवन का समीभाग, कि थोड़ा सा समय अपने अच्छे लोगों के बीच में देना है, अच्छे वातावरण में रहना है, प्रकृति के सानिध्य में रहना है, पक्षी पशुओं के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों के दुख देखने हैं, आसपास के गांव में भी, परिवारों में भी, किस प्रकार के किन किन परिस्थितियों में भी लोग जी रहे हैं, फिर भी खुशी के साथ जी रहे हैं। क्या हम इस तरह से, अपने पास तो बहुत कम दुख है, उनके पास तो इतने बड़े बड़े दुखों को झेल करके भी वो आराम से सो जाते हैं, आराम से खा लेते हैं, आराम से नाच लेते हैं, और हमारे पास में इतना सब कुछ होकर के भी सारे साधन हैं, भौतिक साधन है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अगर नहीं करते हैं तो हम थोड़े से, तो इसके लिए थोड़ा सा समय चेंज करो, मेरे पास आ जाओ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मीन्स मैंने तो खुद अनुभव किया है, आपके सानिध्य में जितना भी समय व्यतीत किया है, बहुत ही शांति का अनुभव मैंने खुद महसूस किया है। सो डेफिनेटली आपके जितने भी सेंटर्स है, इतनी क्लीनलीनेस, इतना पीसफुल वातावरण, इतने अच्छे स्टाफ, मीन्स इतने अच्छे स्टाफ के जिसकी मैं, मेरे पास शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखे, उसमें जो विरायतन संस्था है वहाँ का स्टाफ बहुत ही डिसिप्लिन था। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर कोई डायरेक्टली आचार्य श्री जी पूछना चाहे तो मैं उनको मौका देना चाहूंगा। जी, एक प्रश्न आया है आचार्य श्री जी के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे से
बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, बट हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि सभी की अपेक्षाएं हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है। हम ये जानते हैं पर फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये परिस्थिति में हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, हम सारी दुनिया को प्रसन्न कर नहीं सकते हैं, ये वास्तविकता है। न सारी दुनिया की अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं, ऐसा संभव है। किसी से नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, शक्ति हो, साधन हो, पैसे हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति सारी दुनिया की अपेक्षा को कभी कोई पूरा नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे भीतर में किसी की उपेक्षा का भाव नहीं है। बस इतना हमें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कि हम उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा कर सके और कोशिश करें और उपेक्षा न करें। इससे ज्यादा हम उनके सुख दुख की चिंता हम छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि जैसे पेशेंट है, अपने 500 पेशेंट करते थे, फिर 700 पेशेंट एक दिन में, फिर 1000 पेशेंट, फिर 1500 पेशेंट, और फिर कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन लगानी ही पड़ी कि भाई इससे ज्यादा पेशेंट उनको अपने संभाल नहीं पाएंगे, उनकी सेवा ठीक नहीं हो पाएगी। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। हमने तो सुना था कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति जाता है उसका उपचार होता है, और यहाँ आए और उपचार नहीं हो पा रहा है तो वो दुखी होते हैं। तो बोले अभी नहीं, तुम फिर बाद में आना, फिर कुछ अगले सप्ताह में आना। तो आज इतनी इसकी कैपेसिटी है कि एक दिन में 1500 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, तो फिर अगले सप्ताह में आना। कोशिश करते हैं, फिर भी लोग दुखी होकर के जाते अपने पास में, बस उनको सांत्वना देने के अतिरिक्त अपने पास में कोई उपाय नहीं होता। पर हमें नील जी ध्यान रखना है कि हम सारी दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितना भी हो सकता है प्रेम से करेंगे और किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रख ले, इतनी अपनी जिम्मेवारी, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आचार्य श्री, थोड़ा उपेक्षा के ऊपर हाईलाइट कर सकते हो कि उपेक्षा से आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई मेरा ऑपरेशन आप करवा दीजिए, नहीं होगा, ऐसा कर नहीं हो सकता, तो उसको नेग्लेक्ट ना करो, उसको समाधान देने की कोशिश करो कि भाई मैं जरूर व्यवस्था कराने के लिए प्रयत्न करूंगी, लेकिन नहीं हो सकेगा। तो एक तरह से उसको उसकी जख्म को और अधिक उसको तकलीफ दिए बिना उस जख्म को हम उसको मलहम पट्टी करके उसको भेज सके, इसका अर्थ है कि उपेक्षा नहीं करना है। जी। उसके दुख को, उसकी आवश्यकता को, उसके अभाव को, उसकी पीड़ा को हम समझते हैं, और उसकी पीड़ा को समझ करके हम उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहते हैं कि उसको ध्यान में आ जाए। हम उसको नहीं कि जाओ भाई तुम कल क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों नहीं हुआ। पहले लोग ऐसा बोलते थे, पर मैंने उनको समझाया कि देखो, कल्पना करो कि तुम्हारी माँ है इस जगह पे, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे रिश्तेदार है, अगर उनके साथ इस प्रकार से कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसको तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भी किसी न किसी की माँ है, किसी न किसी के पिता है, किसी न किसी का रिश्तेदार है, उसको भी लोग प्रेम करते हैं, उसकी वो उपेक्षा देखेंगे तो उनको कितनी बड़ी पीड़ा होगी। तो हम एक तरह से उसकी उपेक्षा ना करें। कोई भी हमारे पास में आ जाए, हम कर सकते हैं, करें, ना करें उसको प्रेम से कि भाई आज ये परिस्थिति नहीं है कि मैं आपके लिए इतना काम दे सकता हूँ, कि समय दे सकता हूँ, कि काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो बस मेरी सद्भावना है तुम्हारे साथ में, जब भी मेरे पास में सुविधा साधन उपलब्ध होंगे मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। इतना कर करके उसको प्रेम से विदा करो, उसकी अपेक्षा न करो। जी आचार्य श्री जी, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सॉरी समय की मर्यादा है, पर और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगा कि आप जिस पद पे हो तो उस पद के ऊपर आप कितने सारे लोगों से कनेक्टेड हो, आपकी बहुत सारी शिष्या है, इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो ये सब चीजों में आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो इसके ऊपर जानना है कि आप टाइम मैनेजमेंट। हाँ
मुझे ऐसे लगता है मैं काम करती ही नहीं हूँ, अपने आप होता जाता है, मैं उसे देखती हूँ। तो मुझे टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी नहीं जरूरत पड़ी, कभी नहीं। आज से मैं 50 वर्ष से काम कर रही हूँ, मुझे कभी नहीं ऐसे लगा कि मैं काम करने में ये काम रह गया, कि वो काम नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने प्रेम से किया है और काम होता चला गया है। मुझे कभी भी उस टाइम मैनेज करने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आज भी नहीं। आज इतनी सभी संस्थाओं में प्लानिंग होता है, थोड़ा सा लोग सपोर्ट कर लेते हैं तो उससे काम, और जब करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति साथ में आ ही जाता है, आप जैसे व्यक्ति जुड़ ही जाते हैं और उस काम को विस्तार दे देते हैं। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आचार्य श्री जी, आपने आज के इस टॉक सेशन के अंदर हमें भगवान महावीर के जो सिद्धांत बताए हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक आज के इस टॉक सेशन में जुड़े हैं उनकी जिज्ञासाओं का भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रेम से समाधान किया। उस बदल मैं जैन फाउंडेशन और जैन टॉक्स की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब जुड़े और इतनी सुंदर सेशन के अंदर आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जिससे हर कोई लाभान्वित हुआ है। तो इस बदल आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और ऐसी आशा रखता हूं कि ताई माँ से हम लोग ऐसे ही जुड़े रहे और जैन फाउंडेशन के माध्यम से हम फिर से कनेक्ट हो और कोई और विषय के ऊपर जो कि उन्होंने खुद अनुभव किए हैं, वो प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ये सब वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने आज कितनी सुंदर अपरिग्रह की डेफिनेशन भी दी। शायद हम तो विचार के अंदर ही अपरिग्रह को चिंतन करते रहते हैं, बट इन्होंने जो संविभाग करना है और रियल अपरिग्रह जो है उसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आज हम सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी, तो उस बदल मैं पुनः उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप सबको अवेलेबल हो सकती है। द जैन फाउंडेशन नाम की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर 2 दिन के भीतर इस सेशन की रिकॉर्डिंग को रखा जाएगा। तो आप द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा साध्वी श्री संघमित्रा जी को आज के इस सेशन के मंगल पाठ के लिए। साध्वी श्री संघमित्रा जी। आपका दर्शन कर, आपका भी दर्शन। मंगल पाठ, सभी हाथ जोड़ के उस दिव्य परमात्मा का स्मरण करें जिनके संस्कारों ने हमें ये सुंदर जीवन जीने का अवसर मिला है। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम्, अर्हंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यत्र देवो महावीरो, यत्र श्री गौतमो गुरु, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम। उपसर्गाक्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। अंगुष्ठे अमृतवसे लागितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये,
भावे केवल ज्ञान, भावे जिनवर वंदिये, पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय गुरु गौतम स्वामी की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। जिन शासन देव की जय। सकल श्री संघ की जय। जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मथीन वदामी, जय जिनेंद्र। और मैं भी अंत में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, फिर भी आपने इतना प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रेम से याद करके धन्यवाद दे रही हूँ। और जब कभी मौका मिले मेरा इतना ये, या कभी भी जरूरत हो और कभी भी मौका मिले तो आप मुझे याद करिए, मैं आपके पास हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आचार्य श्री, थैंक यू सो मच।